Let's read the practical example first. Following is the balance sheet of RAM Company Limited as on 31st March 2020. So we are given one balance sheet of a company. Name of that company is RAM Company Limited. We have sources of fund, application of fund. In sources of fund, we have share capital, 50,000 equity shares of rupees 10 each, 5 lakh, 8% cumulative preference shares of rupees 100 each, 3 lakh, reserves and surplus 0, secured loans and long-term liabilities 8% debenture 1,50,000, current liabilities and provisions, creditors 2 lakh, outstanding debenture interest 5,000, directors loan 60,000 and bank overdraft 85,000. Total of sources of fund, it means total of liability is 13 lakh. We have application of fund means assets. So we have fixed asset, goodwill 70,000, patents 40,000, freehold property 2,80,000, plant 1 lakh, investments 1,50,000, current assets, loans and advances. In that we have stock, debtors, and for fictitious assets we have preliminary expenses of rupees 50,000 and profit and loss account debit balance 2,60,000. Total of application of fund, it means total of asset is 13 lakh. Clear? So this is a balance sheet. Now some adjustments for capital reduction. The company has passed the following scheme of capital reduction approved by the court. So these are some adjustments for capital reduction. Look at here. Adjustment number 1. Preference shares are to be written down to rupees 50. So preference shares of rupees 100 are written down to rupees 50. So there is a reduction of rupees 50. Equity shares are to be reduced to rupees 4. तो इक्विटी शेयर के लिए हमें क्या देके रखा है 4 रुपीज तक रिडक्शन हो रहा है. 10 रुपए का शेयर्स था, 4 रुपए तक लाना है. इट मींस दैट देयर इज रिडक्शन ऑफ रुपीज 6 पर इक्विटी शेयर्स. क्लियर? फ्रॉम 1/4/2016 dividend on preference shares are not declared and paid. From 1/4/2016 of the preference dividend in arrears, 3/4 are to be waived and for the remaining 1/4 amount equity shares are to be allotted. Now look at here, this is an adjustment of preference dividend, arrears of preference dividend. So if we calculate number of years, so from 1st of April 2016 to 31st March 2020, we have an arrears of 4 years. Clear? So out of 4 years dividend, we have to calculate 3/4 is waived. So for waived amount of preference dividend, we are not supposed to give any effect. And for remaining 1/4 amount, we have to give effect, that is in the form of equity shares. Clear? Next is the debenture holders agreed to waive their accrued and due interest. जो भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा डिबेंचर होल्डर का, उसको वेव करना है. तो जो वेव करना है उसकी हम इफेक्ट देंगे. क्लियर? एंड टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू रुपीज 50,000 एट अ वैल्यूएशन ऑफ रुपीज 75,000 इन पार्ट पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू देम. जितने भी डिबेंचर होल्डर्स है उनमें से 75,000 जो है वो पार्ट पेमेंट के लिए ले रहा है. क्या ले रहा है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. इट मींस दैट अगेंस्ट डिबेंचर दे आर रिसीविंग प्रॉपर्टी. सो टोटल डिबेंचर हमारे कितने थे? 1,50,000. आउट ऑफ 1,50,000 डिबेंचर होल्डर एक्सेप्ट्स 75,000. सो व्हाट इज द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर होल्डर? दैट इज 75,000. ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है, वो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे. नेक्स्ट, रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वॉज वैल्यूड एट रुपीज 3 लाख. जो भी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होगी उसकी जो रिमेनिंग वैल्यू होगी
वो 3 लाख है। इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड फॉर ₹1,90,000, हमें कुछ सेल्स वैल्यू दे के रखी है इन्वेस्टमेंट की, तो इसकी इफेक्ट हम सेल्स में देंगे। अगर प्रॉफिट और लॉस होगा तो वो कैपिटल रिडक्शन में जाने देंगे, और जो भी सेल्स वैल्यू आएगी वो हम कैश एंड बैंक में इफेक्ट देंगे। द डायरेक्टर्स सेटल देयर लोन एज टू 80% thereof by allotment of equity shares as to 10% in cash payment and balance being waived off। जो भी डायरेक्टर्स लोन होगी उसमें से 80% को हम इक्विटी शेयर्स दे रहे, 10% को हम कैश पेमेंट दे रहे, और जो 10% है वो वेव्ड ऑफ हो रहा है। तो जो वेव ऑफ अमाउंट होगा वो हमारा कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, और बाकी का जो पेमेंट है उसकी हम पेमेंट इफेक्ट देंगे। यहाँ पे 80% के लिए इक्विटी शेयर्स में और 10% हम कहां पे देंगे, कैश पेमेंट में। क्लियर? नेक्स्ट इज गुडविल, पेटेंट्स, preliminary expenses and debit balance of profit and loss account are to be write off। this is about utilization of capital reduction। ये हमारा हो गया यूटिलाइजेशन। जो भी ये 4 कंपोनेंट दे के रखे हमारे पास, गुडविल, पेटेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी हमें एप्लीकेशन ऑफ फंड में दिया हुआ है, इनको हमें राइट ऑफ करना है। क्लियर? एंड द लास्ट, द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज टू बी यूटिलाइज्ड इन राइटिंग डाउन प्लांट एंड स्टॉक इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर बुक वैल्यू। अभी हम क्या करेंगे, ये जो 1 to 8 एडजस्टमेंट्स है उसके इफेक्ट देंगे, उसके बाद में कैपिटल रिडक्शन अमाउंट निकालेंगे और कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, नॉर्मली हम वो डिफरेंस कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, कैपिटल रिजर्व में, पर यहां पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना है। वो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हमें एडजस्ट करना है टू राइट ऑफ प्लांट एंड स्टॉक। तो ये हमारे पास कुछ नया एडजस्टमेंट आया। Clear? So these are 9 adjustments. We are given one balance sheet of Shri Ram Company Limited. We are having some adjustment. On the basis of balance sheet and adjustment, pass necessary journal entries and prepare revised balance sheet after implementing the scheme of capital reduction. Also prepare capital reduction account. तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, बैलेंस शीट है, एडजस्टमेंट है। और जो हमने पहले डिस्कशन किया है, कैपिटल रिडक्शन के लिए हमें याद क्या रखना है, हमारे स्टेप्स। अगर आप स्टेप्स भूले, मैं क्या बोल रहा हूं आप ध्यान से सुनना, अगर आपने स्टेप्स मिस किए, अगर आप स्टेप को रट्टा लगा के ऐसे ही कर रहे हो, तो ये आने वाला नहीं है। तो एक बार फिर से हम स्टेप्स देख लेते हैं। लुक एट हियर। नंबर 1, कैलकुलेट कैपिटल रिडक्शन अमाउंट। स्टेप नंबर 2, calculate utilization of capital reduction amount। Step number 3, find out difference of capital reduction amount and its utilization। ये जो 1 और 2 है उसका हमें डिफरेंस निकालना है। Pass necessary journal entries, prepare capital reduction account, prepare cash and bank account for finding out closing cash balance for new balance sheet। अगर रिक्वायरमेंट है तो कुछ कैश ट्रांजैक्शंस दे के रखे। देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कैश ट्रांजैक्शन है, कुछ सेल्स हो रहा है, कुछ डायरेक्टर्स की लोन पेमेंट हो रहा है। तो ये जो भी पेमेंट और रिसिप्ट है उसके लिए हम कैश एंड बैंक अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं। और सबसे लास्ट में वी हैव टू प्रिपेयर रिवाइज्ड बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। क्लियर? यहां पे फिर से हमें एक बात याद रखनी है, इट इज नेसेसरी टू राइट वर्ड एंड रिड्यूस्ड along with the revised balance sheet, or you can write after the scheme of capital reduction with the title of balance sheet। जो भी आप नई बैलेंस शीट बना रहे हो, रिवाइज्ड बैलेंस शीट आप तैयार कर रहे हो, तो उसमें आपको ये दोनों वर्ड, दोनों में से कोई भी एक वर्ड, बैलेंस शीट उसके बगल में ब्रैकेट में एंड रिड्यूस लिखना है, या फिर बैलेंस शीट ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड एज ऑन सेपरेट डेट, और उसके नीचे आपको ब्रैकेट में लिखना है आफ्टर द स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन। Clear, dear student? So this is an example, some steps to solve, some steps. So let's do the solution of this example of capital reduction. Let's solve all the adjustments first, and then we'll move to the steps to be followed. Clear, dear student? So in the example we are given total 9 adjustments.
So step by step we will solve all the adjustments, its effect in calculation as well as its effect in revised balance sheet after implementing the scheme of capital reduction. So my dear student, here we are not preparing capital reduction, वो आपको तैयार करना है, हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट तैयार करने वाले नहीं हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिर्फ एडजस्टमेंट्स का सॉल्यूशन करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे और उसके बाद में हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट प्रिपेयर करने वाले हैं। सो ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव एडजस्टमेंट्स गिवन इन द एग्जाम। सो लुक एट हियर, एडजस्टमेंट नंबर 1, प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिटन डाउन टू ₹50 ईच। मतलब प्रेफरेंस शेयर में क्या हो रहा है, 50 रुपीज तक रिडक्शन हो रहा है। अभी हमारी बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे ये हमें पता नहीं था, ठीक है। और यहां पे हमें करना क्या है कि प्रेफरेंस शेयर को 50 रुपीज तक लेके आना है। सो देयर इज अ प्रेफरेंस शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज 100 रुपीज। सो वो 100 रुपए में से कितना रिडक्शन, कहां तक रिडक्शन करना है हमें, 50 रुपीज तक। सो देयर इज अ रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 ईच। So there is reduction of 3 lakh shares, 3000 shares of ₹50 each, 1,50,000। पुरानी कैपिटल कितनी थी हमारे पास, 3 लाख। इट मींस 3000 शेयर्स ऑफ ₹100 each बैलेंस शीट में था, उसमें से अभी 50 रुपीज हमने कम कर दिए। कितना बचा बैलेंस शीट के लिए? सो फॉर बैलेंस शीट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3000 shares at ₹50 each, so 1,50,000 is transferred to new balance sheet. So this is adjustment number 1. Clear? Adjustment number 2. Equity shares are reduced to ₹4 per share. Reduction in equity shares. Reduction in equity shares to ₹4. So in balance sheet, equity shares are of value 10 rupees. 10 रुपए की वैल्यू है, उसमें से कहां तक घटाना है हमें, 4 रुपए तक घटाना है। तो कितना कम हुआ? So there is a reduction of ₹6 each. Look at here, equity share capital reduction of ₹6 each. So in balance sheet we are given 50,000 shares of ₹10 each. Out of that 50,000 shares of ₹10 each, ₹6 is reduction. So कितना रिडक्शन हो रहा है, 3 लाख रुपीज। तो 50,000 शेयर्स थे, उसमें से 6 रुपए कम हो गए, कितने बचे, 4 रुपीज। तो बैलेंस शीट में कितना ट्रांसफर होगा, 50,000 शेयर्स एट ₹4 ईच। 6 रुपए घटा दिए हमने, तो अभी कितने बचे, 4 रुपीज। सो 2 लाख इज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। दीज आर ओरिजिनल शेयर्स। देखो यहां पे ये ओरिजिनल शेयर्स है जो हमारे 50,000 शेयर्स आ रहे हैं। क्लियर? सो एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 2। मूव टू एडजस्टमेंट नंबर 3। लुक एट हियर, एडजस्टमेंट नंबर 3 हियर। फ्रॉम 1/4/2016 डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट डिक्लेयर्ड एंड पेड। मतलब 1/4/2016 से डिविडेंड पे नहीं हुआ है। ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स 3/4 आर टू बी वेव्ड एंड फॉर द रिमेनिंग 1/4 अमाउंट इक्विटी शेयर्स आर टू बी अलॉटेड। देखो प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए जब हमने आगे वाले सेशंस में बहुत सारा किया था कि जो वेव ऑफ होगा उसके लिए कोई इफेक्ट देनी नहीं है, पर जो पेमेंट करना है प्रेफरेंस डिविडेंड का एरियर्स, उसके लिए ही हमें इफेक्ट देनी है। तो यहां पे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे कितने ईयर का डिविडेंड है। देखो यहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड फ्रॉम 1/4/2016 इज इन एरियर्स। सो लुक एट हियर, प्रेफरेंस डिविडेंड 4 years फ्रॉम 1/4/2016 to 31st March 2020. So 4 years and the capital is given at 3 lakh. In balance sheet preference share capital कितनी है, 3 lakh. So for that 3 lakh rupees, 8% rate of dividend, 4 years. So the amount of preference dividend is 96,000. ये जो 96,000 आया ये 4 साल का डिविडेंड आया, और इसमें से हमें पेमेंट कितना करना है, देखो यहाँ पे 3/4 वो वेव्ड हो रहा है, 1/4। तो ये 96,000 जो है, आउट ऑफ टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड 96,000, एरियर्स 3/4 was waived and remaining 1/4 equity shares are issued. अभी यहां पे आपके पास एक नोट है जो हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, नो इफेक्ट फॉर वेव्ड ऑफ एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। जो वेव ऑफ हो रहा है उसकी हमें कोई इफेक्ट नहीं देनी है। जो पेमेंट करना है हमें, पेमेंट कैसे कर रहे हैं हम, 1/4 का पेमेंट कर रहे हैं और उसके लिए भी हम इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं।
तो 1/4 कितना होगा? सो इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड फॉर ₹24,000, 96,000 मल्टीप्लाइड विथ 1 डिवाइडेड बाय 4. सो 24,000 रुपीज के लिए, रुपीज प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए हम इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं. क्लियर? कितने इक्विटी शेयर्स, कितने रुपीस के इक्विटी शेयर्स? 24,000 के. तो यहां पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए है, ये अमाउंट है आपके पास. ये जो 20,000 मिली, ये 20,000 मिल रहा है, वो अमाउंट है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है. अभी 24,000 रुपीज के इक्विटी शेयर्स देने हैं. एक शेयर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 4 रुपीज आफ्टर रिडक्शन, नई बैलेंस, नए फॉर्म, नए कंपनी में. सो नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड, फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर इज 4 आफ्टर रिडक्शन. सो नंबर ऑफ शेयर्स 24,000 rupees divided by 4, that comes to 6,000 equity shares are to be issued for preference dividend. ये 6,000 इक्विटी शेयर्स हम प्रेफरेंस के लिए इश्यू करेंगे. सो दिस 6,000 शेयर्स ऑफ ₹4 ईच आर ट्रांसफर टू रिवाइज्ड बैलेंस शीट. देखो पहले वाले 50,000 शेयर्स थे, अब ये 6,000 एक्स्ट्रा प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड के लिए हमने जो दिया है शेयर्स, वो हम बैलेंस शीट में ऐड करने वाले हैं. क्लियर? So this is preference dividend. Adjustment number 1, 2 and 3 done. Adjustment number 4 is, look at here, the debenture holder agreed to waive their accrued and due interest. Debenture holder का जो outstanding interest है वो waived off हो रहा है, तो वो simply capital reduction हो गया. Debenture holder waived their accrued debenture interest, so it is reduction in capital, hence it is added to capital reduction amount. Simply reduction हो रहा है. उसके आगे में कुछ देके रखा है, देखो यहां पे, डिबेंचर होल्डर्स अग्रीड टू वेव देयर एक्रूड एंड ड्यू इंटरेस्ट एंड टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. टू टेक ओवर फ्री होल्ड मतलब जो डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट है वो वेव ऑफ हो रहा है, पर डिबेंचर होल्डर क्या कर रहे हैं? टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू 50,000 एट अ वैल्यूएशन ऑफ ₹75,000 इन पार्ट पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू देम. इसका मतलब क्या हुआ? डिबेंचर होल्डर, ये जो एडजस्टमेंट नंबर 4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ डिबेंचर इंटरेस्ट जो है वो वेव हो रहा है, और डिबेंचर की जो अमाउंट है उसके लिए 50,000 की प्रॉपर्टी डिबेंचर होल्डर कितने में ले रहे? 75,000 में. तो उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे. देखो यहां पे, डिबेंचर होल्डर टेकन ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी फॉर ₹75,000, 75,000 में ले रहे हैं. अभी नॉमिनल वैल्यू डिबेंचर के बैलेंस शीट के मुताबिक कितनी है? 1,50,000. उसमें से पार्ट पेमेंट के लिए वो 75,000 प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो बैलेंस कितना बचा? 75,000. दैट इज द बैलेंस ऑफ डिबेंचर वी नीड टू ट्रांसफर टू न्यू बैलेंस शीट. क्लियर? अभी देखो यहां पे ये 50,000 क्या है? 50,000 की प्रॉपर्टी डिबेंचर होल्डर ले जा रहा है 75,000 में, तो डिबेंचर में तो डिडक्शन हुआ, तो ये जो इसका डिफरेंस है वो कहां से आया? देखो यहां पे, वो एडजस्टमेंट नंबर 5 में आ जाएगा. रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वॉज वैल्यूड एट ₹3 लाख. मतलब ये जो डिबेंचर होल्डर को जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दी है, उसके अलावा जो प्रॉपर्टी बचती है हमारे पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, उसका रीवैल्यूएशन हो रहा है कितने रुपए में? 3 लाख. तो ये हम थोड़ा डिटेल में कैलकुलेशन करते हैं. देखो यहां पे एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या देके रखा है हमारा? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. तो बुक वैल्यू कितनी थी हमारे पास? बुक वैल्यू गिवन इन द बैलेंस शीट इज 2,80,000. Out of 2,80,000, book value of ₹50,000 freehold property was taken by debenture holder. मतलब 2,80,000 में से 50,000 रुपए की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वो डिबेंचर होल्डर लेके गया. वो कितने रुपए में लेके गया वो अलग बात है, पर वो 50,000 की बुक वैल्यू है वो बैलेंस शीट में से कम हुई. इट मींस दैट जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी हमारी कितनी बची? सो वी हैव 2,30,000 एज रिमेनिंग बैलेंस ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. यहां पे देखो एडजस्टमेंट नंबर 5, रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वाज वैल्यू कितना है हमारे पास? 2,30,000. देखो उसके लिए हम कुछ एडजस्ट कर रहे हैं. यहां पे एडजस्टमेंट नंबर 5, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू गिवन इन द बैलेंस शीट 2,80,000, डिबेंचर होल्डर ले रहे हैं 50,000 की फ्री होल्ड वैल्यू प्रॉपर्टी, सो रिमेनिंग प्रॉपर्टी 2,30,000. तो यहां पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसके दो पार्ट आ गए. एक तो जो डिबेंचर होल्डर ले रहे हैं वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, दूसरा जो एज इट इज हो रहा है वो. तो देखो यहां पे प्रॉपर्टी एडजस्टेड फॉर डिबेंचर एंड रिमेनिंग प्रॉपर्टी विच इज रीवैल्यूड. तो यहां पे हमारे पास है
बुक वैल्यू कितनी थी? 50,000 थी। वो डिबेंचर होल्डर कितने रुपए में ले जा रहे हैं? 75,000 में से। इट मींस दैट देयर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ दिस 50,000। कितने रुपए का इंक्रीज हुआ? 25,000। तो ये हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट, रिमेनिंग प्रॉपर्टी कितनी है हमारे पास? 2,30,000। उसको हमने रीवैल्यू किया है कितने रुपए में? 3 लाख में। सो इंक्रीज हुआ यहां पे भी 70,000। क्लियर? ये भी इंक्रीज हुआ। तो देखो यहां पे जो इंक्रीज हुआ 25,000, दैट इज टू बी एडेड in increase in the value of freehold asset to capital reduction account। ये जो इंक्रीज हो रहा है, असेट में इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन इंक्रीज हो रहा है, असेट में डिक्रीज हो रहा है तो यूटिलाइजेशन। तो यहां पे हमारे पास यहां पे 25,000 इंक्रीज इन डिबेंचर, इंक्रीज इन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, यहां पे 70,000 इंक्रीज इन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। सो दोनों जो है यहां पे 70,000, ठीक है ना, ये इंस्टेड ऑफ 75 वी हैव 70,000 and यहाँ पे 25,000 are increase in capital reduction amount। Clear? Next adjustment is 6. Investment are sold for rupees 1,90,000। Investment are sold for 1,90,000। तो देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी थी बैलेंस शीट में? 1,50,000। वो सेल्स कितने में हो रहा है? 1,90,000 में। तो यहाँ पे भी प्रॉफिट आया, यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ। सो दैट इंक्रीज इज एडेड टू कैपिटल रिडक्शन अमाउंट। क्लियर? तो ये 25,000, ये 7 इंस्टेड ऑफ 75 वी हैव 70 है। सो दिस 70,000 एंड दिस 40,000 आर एडेड टू कैपिटल रिडक्शन अमाउंट। क्लियर डियर स्टूडेंट? सो दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 6। नाउ कम टू एडजस्टमेंट नंबर 7। कम टू एडजस्टमेंट नंबर 7। देखो यहां पे क्या देके रखा है? डायरेक्टर्स लोन के लिए कुछ है। The directors settle their loan as 80% thereof by allotment of equity shares, as 10% in cash payment and balance being waived off। तो लोन के लिए हमें 3 अलग अलग एडजस्टमेंट्स है। एक 80% लोन के लिए इक्विटी शेयर्स है, 10% में पेमेंट है और 10% वेव ऑफ है। तो जो वेव ऑफ अमाउंट होगा वो हम कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करेंगे। पेमेंट हो रहा है तो वो कैश एंड बैंक में से डिडक्ट करेंगे और इक्विटी शेयर्स जो इश्यू हो रहे हैं वो हम बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर्स लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। लुक एट हियर। सो फॉर दिस 60,000 बुक वैल्यू गिवन इन बैलेंस शीट, 80% इट मींस रुपीज 48,000, 10% पेड इन कैश एंड 10% waived off। So this for 48,000 equity shares are issued, 6,000 cash payment, so it is to be given effect in cash and bank account, waived off 10% 6,000, so it is addition to capital reduction। Clear? So this is about directors loan। अभी इक्विटी शेयर्स कितने रुपए के इश्यू हो रहे हैं? 48,000 के। तो यहां पे हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। सो हाउ वी कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ शेयर्स? 40 number new face value of equity share is 4, so number of shares issued 48,000 divided by 4 rupees, so 12,000 shares। देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स 3 बार आ रहा है। इनिशियल 50,000 शेयर्स ऑफ ₹4, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए हमने 6,000 शेयर्स ऑफ ₹4 और डायरेक्टर्स लोन के लिए हमने 12,000 शेयर्स ऑफ ₹4 are transferred to balance sheet। Clear? So this is about adjustment number 7, directors loan। Moving further, goodwill, adjustment number 8, goodwill, patents, preliminary expenses and debit balance of profit and loss account are to be written off। This is directly given in the balance sheet। Goodwill 70,000, patent 40,000, preliminary expense 50,000 and profit and loss account 2,60,000। So total of this is 4,20,000। This is capital reduction utilization। Clear? एडजस्टमेंट नंबर 8 यूटिलाइजेशन। अभी यहां पे एडजस्टमेंट नंबर 9। अभी तक हमने क्या किया? पहले कैपिटल रिडक्शन अमाउंट कैलकुलेट किया, फिर उसका यूटिलाइजेशन, उसके बाद में उसका डिफरेंस जो भी आएगा दैट डिफरेंस वाज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। अब तक हमने ये किया है। अभी यहां पे ये डिफरेंस जो है वो कहां पे एडजस्ट करना है? देखो यहां पे द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अमाउंट एंड टू बी यूटिलाइज। जो रिडक्शन अमाउंट का जो रिमेनिंग बैलेंस होगा इज टू बी यूटिलाइज्ड इन राइटिंग डाउन प्लांट एंड स्टॉक इन प्रोपोर्शनल ऑफ देयर बुक वैल्यू। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना है,
जो भी बैलेंस आती है वो हम उससे हमें प्लांट एंड स्टॉक को राइट ऑफ करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कैपिटल रिडक्शन, फिर यूटिलाइजेशन, और फिर हमें मिलेगा हमारा रिमेनिंग बैलेंस। तो हमने हमारे सभी एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं, 9 एडजस्टमेंट्स दे के रखे। वी हैव सॉल्व ऑल द 9 एडजस्टमेंट्स। नाउ वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। सो लुक एट हियर, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट कैपिटल रिडक्शन। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट यूटिलाइजेशन। स्टेप नंबर 3, फाइंड आउट डिफरेंस। तो यहां पे हमें ढूंढना क्या है? डिफरेंस ढूंढना है। लुक एट हियर, स्टेप नंबर 1, कैपिटल रिडक्शन। So in capital reduction, we have reduction in preference share capital 1,50,000, adjustment number 1. We have reduction in equity share, adjustment number 2. We have an adjustment for freehold property. So there is increase of 25,000 and 70,000 in freehold property. Debenture interest waived off, profit on investment and director's loan waived off. तो ये हमारा हो गया रिडक्शन अमाउंट, टोटल 5,96,000। इसके लिए आपको करना क्या है? ये स्टेप नंबर 1 कहां से है? आगे वाले सभी एडजस्टमेंट को ध्यान से समझना है। असेट में इंक्रीज हो रहा है तो यहां पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो रहा है, तो हमने यहां पे लिखा है। डिबेंचर होल्डर वेव ऑफ हो रहा है, ये जो लायबिलिटी है डायरेक्टर्स लोन वो भी वेव ऑफ हो रही है। और उसके अलावा हमारे पास रिडक्शन है शेयर कैपिटल में इन प्रेफरेंस एज वेल एज इन equity. So this is total capital reduction amount. We are given some utilization, preference dividend, equity shares issue कर रहे हैं, मतलब कुछ पेमेंट कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, गुडविल, पेटेंट, preliminary expense and profit and loss account. So total is 4,44,000. Clear? तो यहां से हम हमारा थर्ड स्टेप कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट द डिफरेंस। Point number 3, step number 3 is difference. So difference in reduction amount and utilization is calculate capital reduction. Refer step number 1, 5,96,000. देखो यहाँ पे utilization. Refer step 2, 4,44,000. So the balance 1,50,000, 1,52,000. ये जो बैलेंस है इसका हमें क्या करना है? इसको हमें प्लांट और स्टॉक, अगर 9th नंबर वाला एडजस्टमेंट हमारे पास नहीं होता तो हम ये 1,52,000 कहां पे ट्रांसफर करते? कैपिटल रिजर्व में। बट यहां पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना है। क्या करना है हमें? दिस रिमेनिंग बैलेंस इज टू बी यूज्ड टू राइट ऑफ प्लांट एंड स्टॉक। तो ये 1,52,000 जो है डिफरेंस इन कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइजेशन इज एडजस्टेड टुवर्ड्स राइटिंग डाउन प्लांट एंड स्टॉक एज पर देयर बुक वैल्यू। तो देखो यहां पे ये जो रिमेनिंग बैलेंस है हमारी 1,52,000, उसको हम प्लांट और स्टॉक में राइट ऑफ करने वाले हैं। तो प्लांट की वैल्यू थी हमारे पास 1 लाख, स्टॉक की वैल्यू है हमारे पास 1,50,000। तो 1 लाख और 1,50,000 का अगर हम यहां पे देखें तो उसका रेशियो कितना आ रहा है? 2:3, 1 lakh is to 1,50,000. So the ratio is 2:3. तो प्लांट और स्टॉक जो 1,50,000 में से हमें राइट ऑफ करना है उसका रेशियो कितना आया? 2/5, 3/5. So write off plant 1,52,000 multiplied with 2 divided by 5. So that comes to 60,800. तो वो हमने यहां पे राइट ऑफ किया। स्टॉक के लिए 1,52,000 मल्टीप्लाइड विथ 3 डिवाइडेड बाय 5 कितना मिला? 91,200। तो वो हमने राइट ऑफ किया स्टॉक में। तो यहां पे हमारा आ गया राइट ऑफ 60,800, 91,200। बुक वैल्यू वाज 1 लाख माइनस 60,800। तो बैलेंस शीट के लिए प्लांट की वैल्यू कितनी आ रही है? 39,200। लाइकवाइज स्टॉक की बैलेंस शीट के लिए वैल्यू कितनी मिल रही है? 58,800। क्लियर? देखो मैंने पहले भी आपको बता रखा था, ये रट्टा मार के होने वाला नहीं है, आपको कंसेप्ट याद रखने है। तो यहां पे कंसेप्ट क्या दे रहे हैं, बोल रहा है जो राइट ऑफ होगा वो रिडक्शन होगा। सो दैट इज अ यूटिलाइजेशन। सो न्यू बैलेंस फॉर बैलेंस शीट फॉर प्लांट इज 39,200, स्टॉक इज 58,800।
Clear? So this is the adjustment number 9 for remaining balance to be adjusted for plant and stock. Moving further, we have to find out closing cash balance and total number of equity shares. So देखो क्लोजिंग कैश बैलेंस के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारा बैंक ड्राफ्ट देके रखा है तो वो माइनस होगा, प्लस इन्वेस्टमेंट का सेल हो रहा है 1,90,000 माइनस डायरेक्टर्स लोन के लिए पेमेंट हो रहा है 10% 6,000. सो क्लोजिंग कैश बैलेंस इज 99,000. ओपनिंग बैलेंस माइनस 85,000 प्लस 1,90,000 minus 6,000. So closing cash balance is 99,000 which is transferred to balance sheet. New equity shares in revised balance sheet. Original shares हमारे 50,000 shares of ₹4 each. Issued for preference dividend 6,000 shares of ₹4 each. Issued for directors loan 12,000 shares of ₹4 each. So total 50,000, 6,000, 12,000. Total 68,000 equity shares of ₹4 each. That is transferred to new balance sheet. Clear? So we have closing cash balance, we have equity shares, we have new amount of preference share capital, we have some new balances of assets and liabilities. So on the basis of this we have to pass necessary journal entries and we have to prepare balance sheet. देखो यहाँ पे necessary journal entries, we have to pass this 10 journal entries for reduction of share capital, for preference dividend agreed to pay. जितने एडजस्टमेंट है उतनी जर्नल एंट्रीज है. तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स इश्यू हो रहे हैं प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए, डिबेंचर होल्डर वेव ऑफ हो रहा है, डिबेंचर होल्डर कुछ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले रहे हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट सेल्स हो रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ डायरेक्टर्स लोन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिडक्शन. और उसके अलावा जो बैलेंस होगा जो हमने प्लांट एंड स्टॉक में यूटिलाइज किया राइट ऑफ के लिए उसकी जर्नल एंट्रीज. So we have to pass this 10 journal entries for this particular example. Let's do it. So the first journal entry is for reducing share capital. देखो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है 10 journal entries का. So for reducing share capital, we have reduction in equity and preference. So preference share capital account debited, equity share capital account debited to capital reduction 1,50,000 preference, 3 lakh equity and capital reduction 4,50,000. So this is first journal entry. Second journal entry for preference dividend agreed to pay, capital reduction account debited to preference dividend account. ये हम एग्री हो रहे हैं पेमेंट करने के लिए और पेमेंट कैसे कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स में. सो फॉर इक्विटी शेयर्स इश्यूड फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अल्टीमेट इसकी इफेक्ट क्या आ रही है, capital reduction account debited to equity share capital account. Clear? Up to this clear? Next is debenture holder waive their outstanding interest. So outstanding debenture interest account debited to capital reduction account. तो ये हो गई हमारे debenture holder के जो outstanding interest है उसकी waive off हो रहा है उसकी entry. Next for freehold property taken, debenture holder ले रहे 75,000. So 8% debentures account debited 75,000 to freehold property 50,000 to capital reduction 25,000. Clear? Next is increase in the value of freehold property. Freehold property account debited to capital reduction 70,000 का increase हो रहा है तो capital reduction increase होगा. Next sale of investment, सेल होगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल रिडक्शन, ये जो इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट. क्लियर? ये देखो हमने एडजस्टमेंट किया ना तब हमने ये सब किया हुआ है. ये आपको जर्नल एंट्री कैसे करनी है वो तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा. सो दिस इज फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड 1,90,000 टू इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल रिडक्शन. अभी हमारे पास आ रहा है एडजस्टमेंट फॉर डायरेक्टर्स लोन. लुक एट हियर, directors loan account debited to equity share capital to bank account to capital reduction. ये 48,000 के लिए equity share capital हो रहा है, 6,000 cash and bank and 6,000 capital reduction. Next is utilization for capital reduction amount. So capital reduction account debited to goodwill, to patent,
to preliminary expenses and to profit and loss account. Straightforward. This information is given in adjustment number 8. And adjustment number 9, remaining balances to be utilized to write off. So capital reduction account debited to plant to stock. ये जो हमने कैलकुलेशन किया डिफरेंस जो भी मिला 1,50,000 उसका हमने कैलकुलेशन किया उसकी जर्नल एंट्रीज. Clear dear student? So this is how you can pass journal entries for capital reduction. In steps we have to find out cash and bank, तो वो हमने कर लिया है. Now we have to prepare revised balance sheet after implementing the scheme of capital reduction. देखो रट्टा नहीं लगाना है डियर स्टूडेंट, रट्टा मत लगाओ इस चैप्टर के लिए. कंसेप्ट को याद रखना है आपको. तो कंसेप्ट में क्या देके रखा है, सब भी एडजस्टमेंट हो जाएगा, सब भी जर्नल एंट्रीज हो जाएगी. उसके बाद में हमें क्या करना है, बैलेंस शीट तैयार करना है. तो लेट्स प्रिपेयर द बैलेंस शीट. और बैलेंस शीट के लिए जो हमने आगे भी बोल के रखा है, पहले भी मैंने आपको बोल रखा है क्या, जो हमारा बैलेंस शीट होगी उसका जो टाइटल होगा वो ऐसे ही लिखना है आपको, बैलेंस शीट ऑफ श्रीराम कंपनी लिमिटेड एज ऑन डेट आफ्टर द स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन. आफ्टर द स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन, ये 4 लाइन में आपका बैलेंस शीट होगा हेडिंग. और हमारे पास यहां पे है ये बैलेंस शीट है, पर्टिकुलर्स, सोर्सेस ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड. दिस इज वर्टिकल. सो लेट्स डू इट. तो यहां पे हमारे पास है पर्टिकुलर्स, सोर्सेस ऑफ फंड, शेयर कैपिटल 8% cumulative preference shares 3,000 shares of ₹50 each. Equity shares 68,000 at ₹4 each 2,72,000. Reserves and surplus कुछ नहीं है. Debentures 75,000. Creditors 2 लाख, कोई चेंज नहीं है क्रेडिटर्स में. तो ये हमारा हो गया सोर्सेस ऑफ फंड. एप्लीकेशन ऑफ फंड में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी न्यू वैल्यू वाज गिवन 3 लाख. प्लांट के लिए हमने नई वैल्यू ढूंढी थी 39,200. इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो गए सो नील. स्टॉक के लिए हमने 58,800 नई वैल्यू ढूंढी थी. डेटर्स 2 लाख और कैश एंड बैंक बैलेंस जो हमने कैलकुलेट किया था 99,000. तो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट आफ्टर इंप्लीमेंटिंग द स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन. टोटल इज 6,97,000, 6,97,000 for sources of fund as well as for application of fund. Clear dear student? So this is what the practical example of accounts of capital reduction. In other words, this is accounting for internal reconstruction. So keep watching, keep learning always. Thank you very much. Have a good day. Jai Hind, Jai Bharat.